ہمارے پاس ایران پر حملے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہم ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی بہترین فوج امریکہ کے پاس ہے۔ ایرانی بحریہ کو مکمل ختم کر دیا ہے۔ یقینی بنائیں گے کہ آئندہ جو بھی ایران کی قیادت کرے وہ امریکہ اور اسرائیل کو دھمکی نہ دے۔ مستقبل میں کیوبا کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ توانائی بحران کے حل کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واشنگٹن میں میڈیا بریفنگ۔ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں میں تیزی۔ اسرائیلی فوج کے تہران میں فوجی انفراسٹرکچر، سیکورٹی کمانڈ، مراکز اور دیگر مقامات پر حملے۔ کرمانشاہ، تبریز اور یزد میں بھی رہائشی علاقوں پر بمباری۔ 1200 سے زیادہ شہریوں کی شہادتیں، متعدد زخمی۔ اسرائیل کے لبنان پر بھی فضائی حملے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 100 سے زیادہ شہری شہید ہو چکے ہیں۔ لبنانی وزارت صحت۔ ایران کے اسرائیل اور مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈوں پر تازہ حملے۔ امریکہ اور اسرائیل کے مختلف اہداف پر ایران کے 40 سے زائد میزائل حملے۔ کویت اور بحرین میں امریکی فوج کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکوں کی آوازیں۔ آذربائیجان پر بھی ڈرون حملہ۔ ایران کے حملے کی تردید۔ پاسداران انقلاب کا آبنہ ہرمز میں 10 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ مشرق وسطی کی جنگ کے اثرات۔ توانائی بحران اور ترسیلات زر میں کمی سے بھارتی معیشت کو دھچکا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی سے تیل مہنگا اور ایئر لائنز کے اخراجات میں اضافے۔ بھارتی درآمدات کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ خلیج کے تنازع سے لاکھوں بھارتی تارکین وطن متاثر۔ $50 ارب سالانہ ترسیلات زر اور معیشت پر نمایاں منفی اثرات کا خطرہ۔ امریکی ادارے CNBC کا انتباہ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ایران سے پاکستانیوں کے انخلاء سے متعلق اجلاس۔ ایران سے پاکستانیوں کے انخلاء کی موجودہ صورتحال اور خلیجی ملکوں میں مقیم پاکستانیوں کے حوالے سے بریفنگ۔ ایران سے پاکستانی بحفاظت وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ آذربائیجان میں پاکستانی سفارتخانہ پوری طرح متحرک ہے۔ خلیجی ملکوں میں پاکستانی سفارتخانے اپنے شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت دستیاب رہیں۔ وزیراعظم کی ہدایت۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ترکی اور آذربائیجان پر حالیہ حملے میں گہری تشویش کا اظہار۔ مشکل کی اس گھڑی میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ اس نوعیت کی قابل مذمت کارروائیاں کشیدگی کے ساتھ خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ فریقین سے زیادہ تحمل اور بردباری کی اپیل۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف افواج پاکستان کی زمینی اور فضائی کارروائیاں جاری۔ پاک افغان بارڈر پر کرم سیکٹر میں پاک فوج کی افغان طالبان کے خلاف کامیاب کارروائی۔ متعدد پوسٹیں تباہ۔ پاک فوج نے بھاری آرٹلری فائر سے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ آپریشن غضب للحق تاحال جاری ہے۔ اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ غیر یقینی عالمی حالات میں بھی پاکستان کی معیشت کا استحکام برقرار۔ کشیدہ حالات کے باوجود پاکستانی سرمایہ داروں کا اعتماد قائم۔ تمام چیلنجز کے باوجود معاشی ترقی، لارج سکیل مینوفیکچرنگ اور FBR کے اعداد و شمار میں حوصلہ افزا بہتری۔ پاکستان کی درآمدات میں بتدریج کمی اور 5.25% کی مستحکم شرح نمو ملکی معیشت کو بہتری کی جانب لے کر جا رہی ہے۔ معاشی ماہر اور تولا ایسوسی ایٹس کے صدر اشفاق تولا کی رائے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان کی زیر صدارت پاکستان ازبکستان مشترکہ ورکنگ گروپ کا اجلاس۔ پاکستان ازبکستان کا توانائی، ٹرانسپورٹ، زراعت اور صنعت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک کے درمیان علاقائی رابطہ کاری اور وسطی ایشیا تک رسائی کے لیے نئے تجارتی مواقع پر غور۔ پاکستان اور ازبکستان کا تجارتی حجم میں نمایاں اضافے کے لیے مشترکہ اقدامات تیز کرنے پر زور۔ سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے پنجاب حکومت کا فیصلہ کن اقدامات۔ 3 ماہ کے اندر آبی راستوں کو واگزار کرانے کا فیصلہ۔ پنجاب میں 17 مقامات پر منی ڈیم بنانے کی تجویز پھر منظور۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پوسٹ فلڈ انتظامات کے لیے خصوصی اجلاس۔ متعلقہ محکموں کی تفصیلی بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ کو آبی گزرگاہوں میں غیر قانونی تعمیرات کے سدباب کے لیے مستقل مانیٹرنگ کی ہدایت۔ آبی راستوں میں غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کو کوئی سرکاری امداد نہیں ملے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا 2 ٹوک فیصلہ۔
आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल इतवार को न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत की इंग्लैंड के खिलाफ 7 रन से कामयाबी। संजू सैमसन ने 42 गेंदों पर 89 रन की इनिंग्स खेली। 254 रन के ताकुब में इंग्लिश टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 246 रन बना सकी। जैकब बेथल की सेंचुरी भी टीम के काम न आ सकी। इवेंट के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। मिस्र में एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड और मलेशिया मध्य मुकाबले होंगे। दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। कामयाबी की सूरत में कौमी टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी। इवेंट में पाकिस्तान ने मुसलसल 3 फतुहात के साथ टॉप 4 में जगह बनाई। नेशनल टी20 कप के स्केड्यूल और स्क्वाड्स का ऐलान। टूर्नामेंट कल से 18 मार्च तक पेशावर में खेला जाएगा। 10 रीजनल टीमें 2 ग्रुप्स में तकसीम। इवेंट के लिए टिकटों की तफसीलात जारी। शायकीन पेशावर में निजी कोरियर कंपनी के 3 सेंटर से टिकट हासिल कर सकेंगे। एक शनाख्ती कार्ड पर एक दिन के मैचेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 टिकट्स खरीदे जा सकेंगे। टिकटों की कम से कम कीमत 100, ज़्यादा से ज़्यादा 1200 रुपये रखी गई है। और इटली में विंटर पैरालंपिक्स व्हील चेयर कर्लिंग मिक्स्ड डबल्स राउंड रॉबिन मैचेस से इवेंट का आगाज। पहले मुकाबले में चीन की जापान को 3 के मुकाबले में 10 पॉइंट से शिकस्त। इवेंट की बाज़ाब्ता इफ्तिताही तकरीब कल मुनक़िद की जाएगी। मैदान में तैयारियां उरूज पर। पैरालंपिक्स में रूसी एथलीट्स की वापसी। 22 ममालिक ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ हाजिर हैं हुमैरा राना। मैं हूं रिजवान अली अहमद। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारे पास ईरान पर हमले के सिवा कोई चारा नहीं था। हम लड़ाई में ईरान से ज़्यादा संजीदा हैं। हम ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया की बेहतरीन फौज अमेरिका के पास है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों को ख़त्म किया जा रहा है। उनका कहना था कि ईरान का मिसाइल और दिफाई निज़ाम ख़त्म कर देंगे। मज़ीद कार्रवाई मुतवक्के है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरानी बहरिया को मुकम्मल ख़त्म कर दिया है। यकीनी बनाएंगे कि आइंदा जो भी ईरान की क़यादत करेगा वो अमरीका और इसराइल को धमकी नहीं देगा। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों में तेजी आ गई है। इसराइली फौज ने तेहरान में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी कमांड मराकज़ और दीगर मकामात पर हमले किए। करमानशाह, तबरेज़ और जस्त में भी रिहायशी इलाकों पर बमबारी की गई। जंग के 7वें रोज़ तक ईरान में तकरीबन 1200 से ज़्यादा अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हैं। इसराइल के लबनान पर भी फ़ज़ाई हमले जारी हैं। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 100 से ज़ायद शहरी शहीद हो चुके हैं। अमेरिका ने गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान ईरान के 200 अहदाफ पर हमले करके बैलिस्टिक मिसाइल के ज़ख़ीरे और 30 से ज़ायद बहरी जहाज़ तबाह करने का दावा किया है। सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल एबर्ट कार्पर ने ईरान पर हमलों से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए कहा कि B-2 बमबार तैयारों ने दर्जनों बंकर बस्टर बमों से गहराई में दफन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए हैं। पहले दिन के बाद से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% कमी आई है। उनका कहना था कि ऑपरेशन के अगले मरहले में ईरान की मिसाइल पैदावार की सलाहियत को तबाह करने पर तवज्जो दी जाएगी। ईरान ने इसराइल और मशरक़ वस्ती में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर ताज़ा हमले किए हैं। ईरान ने अमरीका और इसराइल के मुख्तलिफ अहदाफ पर 40 से ज़ायद मिसाइल हमले किए, जिसमें कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौज के अड्डों को भी निशाना बनाया गया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक साथ दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया था। हम अभी ये वाज़ेह नहीं हो सका कि इनके अहदाफ क्या थे और कितना जानी या माली नुकसान हुआ है। तेल अवीव की फ़ज़ाई सूरत हाल बराह रास्त दिखाने वाले कैमरे को ऐन उस वक्त नीचे करके सड़क दिखाई जाने लगी जब तेल अवीव की फ़ज़ाओं में ईरानी मिसाइलों के दाखिल होने की आवाज़ें गरजना शुरू हुईं। ईरानी फ़ौज ने दावा किया कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने कार्रवाई करते हुए 7 इसराइली ड्रोन तैयारे मार गिराए हैं। ईरानी फ़ौज के मुताबिक जारी जंग के दौरान अब तक 500 से ज़्यादा बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल दागे जा चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ अक़साम के 2000 से ज़्यादा ड्रोन भी फायर किए गए हैं। मिसाइलों में तकरीबन 60% अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि 40% मिसाइल इसराइली इलाकों पर हमलों के लिए दागे गए। पासदारान इनकलाब ने आमना हुर्मुज़ में
10 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा किया है। इसराइल ने ईरान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र मकबूजा बैतुल मक़दिस में वाक़ मस्जिद अक़सा में जुमे की नमाज अदा करने पर पाबंदी आयद कर दी है। इसराइली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये फैसला ईरान की जानिब से इसराइल और खित्ते में जवाबी हमलों के बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस फैसला किया गया है। दूसरी जानिब मस्जिद अक़सा के सीनियर इमाम ने इस इक़दाम की मजम्मत करते हुए कहा है कि इसराइली हुक्काम हर मौके को मस्जिद अक़सा को बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर बिला जवाज़ है। मशरक़ वस्ता में जारी तनाज़ात के बायस 3,30,000 से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं, जबकि हालिया दिनों में कम अज़ कम 1 लाख अफराद ने ईरान को छोड़ दिया है। इसी तरह लबनान में जारी कशीदगी के दौरान 84,000 से ज़्यादा अफराद घरों से बेदखल, जबकि 30,000 से ज़्यादा अफराद शाम मुंतकिल हो चुके हैं। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार ने हमलों के बावजूद ईरानी हुकूमत को मजबूत करार देते हुए कहा है कि ईरानी हुकूमत के खिलाफ बगावत के आसार नहीं, हुकूमती अहदेदारों में इन्हिराफ की इत्तलात भी नहीं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अज़रबैजान पर ड्रोन हमलों की मजम्मत की है। एक बयान में तुर्क सदर ने कहा कि किसी को भी ऐसा गलत रवैया नहीं अपनाना चाहिए जो हमसायगी और बरादराना ताल्लुकात के उसूलों को मजरूह करे। रजब तैयब एर्दोगान ने ईरान को अंकारा के साथ अपने ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने से गुरेज करने का मशवरा दिया। ईरान ने तुर्की पर भी मिसाइल हमले की तरदीद करते हुए कहा था कि वह तुर्की की इलाकाई खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को ईरान से पाकिस्तानियों के खिलाफ और खलीजी ममालिक में मुक़ीम पाकिस्तानियों के हवाले से मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ईरान से पाकिस्तानी बाहिफाजत वतन वापस पहुँच रहे हैं। इजलास को आगाह किया गया कि अज़रबैजान में पाकिस्तानी सफारत खाना पूरी तरह मुतहर्रिक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईरान से पाकिस्तानियों की इनखला के लिए बरादर मुल्क अज़रबैजान की मदद के मशकूर हैं। उन्होंने हिदायत की कि खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी सफारत खाने अपने शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए हर दम दस्तियाब रहें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बरादर मुल्क तुर्की को हालिया हमले में निशाना बनाने पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। समाजी राबते की एक्स पर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं और पाकिस्तान के अवाम मुश्किल की इस घड़ी में अपने बहादुर तुर्क भाइयों बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। इस नौयत की काबिल मसम्मत कार्रवाइयाँ मज़ीद कशीदगी का बायस बन सकती हैं और खित्ते के अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम फरीकैन से ज़्यादा तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेने की अपील करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि खुद मुख्तारी के एहतराम को बरकरार रखने और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के मुकालमे और सिफारतकारी को तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिरादर मुल्क अज़रबैजान पर हालिया हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अज़रबैजान की क़यादत और आवाम के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि ऐसे काबिल मजम्मत इक़दामात की शदीद मजम्मत करते हैं जो मज़ीद कशीदगी का बायस बन सकते हैं और खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ्रीकैन से तहम्मुल और बुर्दबारी की अपील करते हैं और इस बात का अयादा किया जाता है कि कशीदगी में कमी लाने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मकालमे और सिफारतकारी को फ़रोग़ देना नागुज़ीर है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने खित्ते में कशीदगी के तनाज़ुर में तहम्मुल इख्तियार करने की अपील की है। सदर मुमलिकत ने खित्ते में हालिया मिसाइल हमलों की इत्तलात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है, जिनमें मुबैना तौर पर तुर्की और अज़रबैजान के बाज़ इलाकों में मिसाइल गिरने की इत्तलात भी हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि इस नौयत की पेशरफ्त कशीदगी में इजाफे का बायस बन सकती है। ऐसे वक्त में इस्तेहकाम और मुकालमा निहायत ज़रूरी है। सदर मुमलिकत ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी सूरत हाल खित्ते के सिक्योरिटी माहौल की नज़ाकत को भी उजागर करती है। खित्ते में कशीदगी में इजाफा किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं, इसके अमन व सलामती पर वसीतर असरात मुरतब हो सकते हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने तमाम मुतालिका फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, मज़ीद कशीदगी से गुरेज करें और ख़दशात और इख्तिलाफ़ात के हल के लिए सिफारती ज़राए को तरजीह दें। सदर मुमलिकत ने कहा कि बामानी राबता और तामीरी मुकालमा ही कशीदगी में कमी और खित्ते के इस्तेहकाम व तहफ़्फ़ुज़ का सबसे मौसर रास्ता है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने गिलगित बल्तिस्तान खुसूसन स्कर्दू के बाज़ इलाकों में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल का सख्त नोटिस लिया है, जहाँ पर पुरतशद्दुद मुज़ाहरों के बायस अवामी और निजी बुनियादी ढांचे को वसी नुकसान पहुँचा और मामलाती ज़िंदगी मुतासिर हुए। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पुरअमन एहतजाज आईनी हक़ है, हम इसे कानून के दायरे में रहते हुए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सदर ने अवामी, निजी और गैर सरकारी तंजीमों की इमलाक बशमूल सरकारी इमारतों, तालीमी इदारों और बैनुल अक़वामी इदारों के दफातर को पहुँचने वाले नुकसान
اور تباہی کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور ایسے اقدامات سے گریز کریں جن سے کشیدگی میں اضافہ ہو۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی صدارت میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور فراہمی کی نگرانی کے لیے وزیراعظم کی قائم کردہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ کمیٹی کو بریفنگ دی گئی کہ ملک میں پیٹرول، ڈیزل اور دیگر اہم پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر تسلی بخش ہیں۔ فوری طور پر فراہمی کے حوالے سے کسی قسم کی تشویش نہیں، تاہم عالمی سطح پر توانائی کی منڈی اور سپلائی چین کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلسل نگرانی اور پیشگی منصوبہ بندی جاری رکھنے پر زور دیا گیا۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ حکومت توانائی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے متبادل ذرائع اور لاجسٹک انتظامات پر بھی کام کر رہی ہے۔ دوست ممالک اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ سفارتی اور تجارتی سطح پر رابطے جاری ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی اضافی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ اجلاس میں ذخیرہ اندوزی، غیر قانونی ذخیرہ، مصنوعات کی غیر قانونی منتقلی اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانا ہے۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ جامع عمل درآمد کے لیے سفارشات اور منصوبہ آج وزیراعظم کو پیش کیا جائے گا۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان کی زیر صدارت پاکستان ازبکستان مشترکہ ورکنگ گروپ کا اجلاس ہوا، جس میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کے فروغ اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر غور کیا گیا۔ اجلاس کے دوران تجارت کے فروغ، نئے تجارتی راستوں اور مختلف شعبوں میں تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشتوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ہارون اختر خان نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تجارت بڑھانے کے لیے 2026 سے 2030 تک کا 5 سالہ روڈ میپ تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مختلف شعبوں کے لیے 8 ورکنگ گروپس قائم کیے گئے ہیں۔ توانائی، ٹرانسپورٹ، زراعت اور صنعت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے اور وسطی ایشیا تک رسائی کے نئے تجارتی مواقع پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، غیر یقینی عالمی حالات کے باوجود پاکستان کی معیشت میں استحکام برقرار ہے۔ خلیجی ممالک اور مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال کے باوجود پاکستانی سرمایہ کاروں کا اعتماد قائم ہے۔ معاشی ماہرین نے حکومت اور SIFC کے اقدامات کو مثبت قرار دے رہے ہیں۔ معاشی ماہر تولا ایسوسی ایٹس کے صدر اشفاق تولا کے مطابق عالمی منڈی میں غیر یقینی صورتحال کے باوجود پاکستان میں معاشی بہتری کے آثار نمایاں ہیں۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ اور FBR کے اعداد و شمار میں بھی حوصلہ افزا بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس تقریباً 16 ارب ڈالر کے زیر مبادلہ کے ذخائر موجود ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کے بھی مناسب ذخائر دستیاب ہیں۔ درآمدات میں کمی اور 5.25% کی شرح نمو ملکی معیشت کو بہتری کی جانب لے جا رہی ہے۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ میں SIFC کا کردار اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگی کشیدگی بھارتی معیشت کے لیے شدید خطرہ بن گئی ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے CNBC کے مطابق توانائی کے بحران، ترسیلات زر میں کمی اور کرنسی پر دباؤ بھارت کی معاشی مضبوطی کو ہلا سکتے ہیں۔ کشیدگی سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور ایئر لائنز کے خراجات بڑھنے کے باعث بھارتی درآمدات کو خطرات لاحق ہیں۔ خلیج میں موجود لاکھوں بھارتی تارکین وطن بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس سے بھارت کی سالانہ 50 ارب ڈالرز کی ترسیلات زر اور مجموعی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ترسیلات میں کمی اور تیل کی مہنگائی بھارتی مالی پوزیشن کو کمزور اور روپے پر دباؤ بڑھا سکتی ہے، جس کے نتیجے میں ملک کی معاشی سرگرمیاں شدید متاثر ہو کر تقریباً رک سکتی ہیں۔ یہ کشیدگی بھارت کے لیے نہ صرف جغرافیائی یا سیاسی بلکہ ایک واضح معاشی خطرہ بھی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب میں سیلابی تباہی سے عوام کو مستقل تحفظ فراہم کرنے کے لیے جامع اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ 3 ماہ کے اندر تمام فلڈ زونز خالی کرنے، آبی راستوں میں غیر قانونی تعمیرات روکنے اور تجاوزات پر پابندی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ڈیم ٹیکنالوجی متعارف کرانے، کالا باغ اور میں آبی ذخائر کی استعداد بڑھانے اور PDMA کی ری اسٹرکچرنگ کے ساتھ 8 نئے ونگ بنانے کی ہدایات دی ہیں۔ پنجاب میں 17 مقامات پر منی ڈیم بنانے کی تجویز بھی منظور کی گئی ہے اور چنیوٹ میں بند کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ تیار کر کے اصولی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ریسکیو 1122 کے لیے جدید آلات، 10 لینڈنگ کرافٹ، نیویگیشن اور کمیونیکیشن کے جدید آلات اور فلائنگ لائف بوائے جیکٹ فراہم کرنے کی منظوری دی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ سڑکیں، پل اور ایک ٹراپل بحال کر دیے گئے ہیں۔ 183 آبپاشی پروجیکٹس، 298 سیلابی نالے اور 67 ڈرینیج سسٹمز کی ری سلیکٹنگ کی جا رہی ہے۔
वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। मशरक़ वस्ती में कशीदगी में कमी के लिए हमने भरपूर सिफारती कोशिशें की हैं। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान रजीम को पाकिस्तान या दहशतगर्दों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। पाकिस्तान ने सफारती कोशिशें अपनी भरपूर हर सतह पे की हैं और पाकिस्तान की एक सिग्निफिकेंस है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। पाकिस्तान की जो स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ है और हमारी दुआ है कि कशीदगी कम हो। अफगानिस्तान की तरफ से मुसलसल सुलह के पैगाम आ रहे हैं, क्या पॉलिसी? उनके लिए तो बड़ा क्लियर पैगाम है कि या पाकिस्तान तो या दहशतगर्द, इनमें से एक का इंतखाब उनको करना होगा। अफगान तालिबान और फितनाल खारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की ज़मीनी और फ़िज़ाई मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फ़ौज ने अफगान सरहद के साथ कुरम सेक्टर में कामयाब कार्रवाई करते हुए मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी। पाक फ़ौज ने भारी हथियारों से अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज की पोस्टों को निशाना बनाया। ऑपरेशन ग़ज़ब अल हक़ ताहाल जारी है और अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। अफगान तालिबान रजीम ने ऑपरेशन ग़ज़ब अल हक़ में पाकिस्तान के हाथों रसवाई को छुपाने के लिए मीडिया पर दबाव और पाबंदियां बढ़ा दी हैं। अफगान मीडिया अमू टीवी के मुताबिक अफगान तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान की फ़िज़ाई कार्रवाइयों के बाद तालिबान ने मकामी मीडिया पर दबाव और सेंसरशिप मज़ीद बढ़ा दी है। अफगान तालिबान ने सहाफ़ियों को खबरदार किया कि वो हमलों की रिपोर्टिंग न करें, खुसूसन वो जो उनके फ़ौजी मराकज़ पर हुए हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान तालिबान ने मीडिया को पाकिस्तान की फ़िज़ाई कार्रवाइयों के मकामात या तादाद से मुतालिक रिपोर्टिंग से भी रोकते हुए इंतबाह जारी किया है कि तालिबान की फ़ौजी तनसीबात पर हमलों से मुतालिक कोई खबर शाया या नशर न की जाए। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयों में तबाहशुदा ठिकानों से मुतालिक रिपोर्टिंग पर पाबंदी ने अफगान तालिबान रजीम की मुनाफ़त और नाकामी बेनकाब कर दी है। और नाज़रीन, ऑपरेशन ग़ज़ब अल हक़ में सहाफ़ी बरादरी भी अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। प्रेस क्लब ननकाना साहिब के ज़ेर-ए-तमाम पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रिपोर्ट कर रहे हैं ननकाना साहिब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मुआविया। प्रेस क्लब ननकाना साहब के ज़ेर-ए-एहतमाम पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी रहनुमाओं, सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारान और मीडिया नुमाइंदगान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली प्रेस क्लब से शुरू हुई, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई कचहरी चौक पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने दिफाए वतन के लिए पाक फ़ौज की कुर्बानियों को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया और पाक फ़ौज के हक में नारेबाजी की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। हमें पाक फौज पे फख्र है, हम पाक फौज के साथ हैं। पाक फौज जिंदाबाद थी, पाक फौज जिंदाबाद है और इंशाल्लाह पाक फौज जिंदाबाद ही रहेगी। पाक फौज पहले भी नंबर 1 थी, अब भी नंबर 1 है। पाक फौज के जो इक़दामात हैं वो इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए किए गए हैं, तो हम पूरी कौम इस वक्त यकजा होकर जो है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ है। कौम को मुत्तहद होने की जरूरत है और मुत्तहद होकर ही ये कामयाबी यकीनी होगी। रैली के शुरका ने ईरान पर इसराइली जहारियत की भी मजम्मत की। हमारी बहादुर फौज ने वतन अजीज के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को हर महाज पर शिकस्त दी है। यही वजह है कि पूरी पाकिस्तानी कौम को पाक फौज पर फख्र है। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के ज़ेर-ए-एहतमाम यतीम बेसहारा हुनर सीखने वाले बच्चों के एजाज़ में डिप्टी कमिश्नर हाउस शेखुपुरा में इफ्तार का एहतमाम किया गया। रंग बिरंगी रोशनियों बरकी कुमकुमों से सजी तकरीब में बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में पहुंचने पर बच्चों का पुरजोश और शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट समेत दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि एहसास रमज़ान प्रोजेक्ट गुज़श्ता कई बरसों से मुस्तहिक बच्चों की खुशियों में शरीक होने का जरिया बन रहा है। पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट इन बच्चों को रियासत और मुआशरे के साथ मुस्बत अंदाज में जोड़ने के मिशन पर कामयाबी से गामज़न है। तकरीब में बच्चों के लिए झूलों और मुख्तलिफ खेलों का एहतमाम भी किया गया। निगहबान राशन कार्ड सफ़ेद पोश और मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए बाइज़्ज़त सहारा है। मुल्तान में भी वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर प्रोग्राम के तहत कार्ड्स की तकसीम जारी है। तफसील बता रहे हैं मुल्तान से अली गुल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के अवाम दोस्त विजन के तहत मुल्तान डिवीज़न में रमज़ान निगहबान कार्ड्स की रिकॉर्ड रफ्तार से तकसीम जारी है। प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद में मजमूई तौर पर 3 अरब 96 करोड़ 18 लाख 70 हज़ार रुपये तकसीम किए जा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बराए फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन सलमा भट्ट ने मुल्तान में कार्ड्स तकसीम करते हुए कहा कि
मरीम नवाज शरीफ की हिदायत है कि किसी मुस्तहिक फर्द को कार्ड से महरूम ना रखा जाए। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत अवामी फलाह बहबूद और तरक्की पर यकीन रखती है। 10-10 हज़ार रुपए फी घराना मुल्तान में तकरीबन 1,67,000 से ज़ायद खानदानों को पहुंचाया जा रहा है और इसमें से मेजॉरिटी जो कार्ड्स हैं वो पहुंचाए जा चुके हैं, इसकी तरसील की जा चुकी है। इसके लिए इन कार्ड्स को कैश करवाने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट मुल्तान है उसमें 400 से ज़ायद ब्रांचलेस बैंकिंग के पॉइंट्स इस वक्त अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के अवाम दोस्त विजन के मुताबिक मुस्तहिक अफराद को बर वक्त और शफाफ अंदाज में रिलीफ फराहम किया जा रहा है। घर पहुँचाया कार्ड, हमें लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ा और हम इस इक़दाम से मरीम नवाज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं मरीम नवाज की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ। बहुत मेहरबानी उनकी कि उन्होंने मुझे ये राशन कार्ड दहलीज पे पहुँचाया। मरीम नवाज साहबा का शुक्रिया जिन्होंने हमें ये कार्ड दिए। हमारे रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। सूबे भर में निगहबान कार्ड प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों को हुकूमती रिलीफ की फरहमी के अमल को मजीद तेज बनाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद अफराद इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। वज़ीर-ए-आला पंजाब के अवाम दोस्त विजन के तहत रमज़ान मुबारक में गरीब व मुतवसत तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए ज़िला कोट अद्दू में मुख्तलिफ मकामात पर निगहबान रमज़ान बाजार लगाए गए हैं, जहाँ खाने पीने की 100 से ज़्यादा मेयारी अशिया 20% तक कम कीमत में फ़रोख्त की जा रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सरदार बिलाल चाटियो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर रमज़ानुल मुबारक में लोगों को अशियाए खुर्दोनोश की सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से ज़िला भर में मुख्तलिफ मकामात पर निगहबान रमज़ान बाजार लगाए गए हैं, जहाँ रोज़मर्रा इस्तेमाल की मुख्तलिफ मियारी अशिया 20% तक कम कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। निगहबान रमज़ान बाजार में 10 किलो आटे का थैला 50 रुपए कम कीमत के साथ 850 रुपए, चीनी 15 रुपए कम कीमत के साथ 140 रुपए फी किलो, जबकि मियारी गोश्त आम बाजार से 100 रुपए फी किलो कम कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। सब ने अपनी वज़ीर आला पे एतमाद किया और उनकी जो 2 साल की परफॉर्मेंस है और जिस तरह से 2 साल से उन्होंने जांच फिशानी से अपने सूबे की तरक्की के लिए एक एक ज़िले में खुशहाली पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाए। लोगों की बड़ी तादाद निगहबान रमज़ान बाजार में अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ताज़ा फल, सब्जियां, मशरूबात, घी, मिसाला जात समेत दीगर अशिया सस्ते दामों खरीद रही है। मैं आई वधिया सस्ता बाजार है, आई वधिया मैं सौदे गिंदी पई सस्ते सौदे देने पर मैं को शुक्रिया मरियम नवाज दी। बहुत अच्छा बाजार है, बहुत सस्ता बाजार है, गरीबों के लिए अच्छा सहूलत मरीम ने दी है। वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ बहुत अच्छा बाज़ार दिया, सस्ता बाज़ार दिया और ये कोई हमें नेमत से कम नहीं है। माह मुक़द्दस में लोगों को मियारी अशिया की सस्ते दामों बासानी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए निगहबान रमज़ान बाजार हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम है। सरदार बिलाल चांडियो, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट कोट अद्दू। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह जिला खानेवाल में भी गरीब और मुस्तहिक अफराद में उनकी दहलीज पर निगहबान रमज़ान राशन कार्ड की तकसीम का सिलसिला जारी है। अब तक 1,21,000 निगहबान कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे कुलज़म बशीर अहमद। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत निगहबान राशन कार्ड की तकसीम का अमल शफाफियत के साथ जारी है। जिला खानेवाल में 1,37,000 मुस्तहिक अफराद में ये कार्ड तकसीम किए जाने थे। अब तक 90% से ज़ायद कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। 11,000 कार्ड की तकसीम का अमल आइंदा 2-3 रोज़ में मुकम्मल कर लिया जाएगा। 1,37,000 घराने अहल करार पाए थे और उनमें से 1,21,720 जो घराने हैं उनको अब कार्ड डिलीवर हो चुके हैं। निगहबान कार्ड की पेमेंट हो रही है। पेमेंट के बाद हम लोग उनको पिन कोड अलॉट कर रहे हैं। उसके बाद जो पेमेंट होगी ना वो ATM कार्ड के जरिए होगी। मरियम नवाज का शुक्रगुजार हैं कि रमज़ान के महीने में हमें पहली मरतबा जो है ये पैकेज मिला और बड़ी आसानी से और कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। मैं मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारा इतना ख्याल किया और हमें पेमेंट मिल चुकी है और इसमें कोई कटौती नहीं हुई। मोहतरमा मरियम नवाज वज़ीर-ए-आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी मदद की है माह रमज़ान के महीने में। गरीब और मुस्तहिक अफराद को रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करना वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब है। कुलज़म बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, खानेवाल।
वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द और मतला जिस्मी तौर पर अब्रलूद रहेगा। ताहम शिमाली खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बुलंद पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में दिन की दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में सर्द रहा। और अब आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। अब आपको आगाह करते हैं, आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर लाहौर रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 रिकॉर्ड किया गया। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका दूसरे नंबर पर रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 286 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय शहर कोलकाता तीसरे नंबर पर रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 191 रिकॉर्ड किया गया। चौथे नंबर पर भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रहा। पाँचवें नंबर पर नेपाल का दारुल हुकूमत काठमांडू रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड किया गया। जबकि छठे और आखिरी नंबर पर वियतनाम का दारुल हुकूमत होनोई रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेंडस की जानिब। शुक्रिया कदीर। बढ़ते हैं कुछ मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर आला पंजाब के निगहबान दस्तरखान मरियम के मेहमान के तहत ज़िला बिहाड़ी में 7 मुख्तलिफ मकामात पर रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ेदारों के लिए इफ्तारी का अहतमाम किया जा रहा है, जहाँ पर रोज़ाना 2000 से ज़ायद अफराद रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। तफसील बताएंगे बिहाड़ी से बहादुर हुसैन। ज़िला बिहाड़ी में रमज़ान दस्तरखान मरियम के मेहमान के तहत 7 मकामात पर रोज़ेदारों को रोज़ा अफ्तार करवाया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर 2000 से ज़ायद रोज़ेदारों को रोज़ा अफ्तार करवाया जा रहा है। अब तक 25,000 से ज़ायद रोज़ेदार रोज़ा अफ्तार कर चुके हैं। अफ्तारी में खजूरें, मशरूब, फल, समोसा और बिरयानी पेश की जा रही है। हम यहाँ पर रोज़ा अफ्तार करने के लिए आए हैं। यहाँ पर बेहतरीन अफ्तारी करवाई जा रही है। इधर बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है मरियम नवाज़ की तरफ से। मैडम मरियम नवाज़ दस्तरखान लगा हुआ है और उसके अंदर चावल और समोसे वगैरह, उसके बाद मशरूब और फ्रूट वगैरह होता है। नवाज़ वज़ीर पंजाब का इनिशिएटिव है और अच्छा इक़दाम हम कहते हैं, बहुत अच्छा। और डीसी साहब यहाँ पर हम डेली यहाँ पर आते जाते हैं और हमारी सुपरविजन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िला अफसरान की जानिब से सफाई सुथराई के साथ साथ अशिया के म्यार को भी यकीनी बनाया जा रहा है और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुसलसल निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी शहरी को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। पंजाब हुकूमत की जानिब से रमज़ान दस्तरखान मरियम के मेहमान का मकसद रोज़ेदारों की दुआएं हासिल करना और ढेरों नेकियां कमाना है। बहादुर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, बिहाड़ी। PTV कराची मरकज़ से जारी रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन नाज़रीन तक पहुँचाने वाले मुलाज़मीन और प्रोडक्शन टीम किस तरह काम करते हैं, बताएंगे सैयद जहांगीर अली अपनी इस रिपोर्ट में। रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। मेज़बान एहसन खान ने तिलावत का तर्जुमा, जबकि नात खानों ने गुलहाए अकीदत पेश किए। रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन मकबूलियत की बुलंदियों को छू रही है, ताहम इस ट्रांसमिशन को अपने नाज़रीन तक पहुँचाने में कैमरामैन, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और प्रोडक्शन टीम के तौर पर काम करने वाले अफराद की अनथक मेहनत होती है। बहुत अच्छे 15 दिन खैरियत से गुजर गए ट्रांसमिशन में और हमारी PTV की पूरी जो टीम है, जब जितने भी हैं माशाल्लाह, और हमारी पूरी कोऑर्डिनेशन की टीम, हमारे तमाम प्रोड्यूसर सब लगे हुए हैं और माशाल्लाह बहुत स्मूथ ट्रांसमिशन जा रही है। चाहे ब्रेक हो या ऑन एयर शो जा रहा हो, हम सब अपनी ड्यूटीज़ को जो है वो अंजाम दे रहे होते हैं। कोई भी ट्रांसमिशन हो वो जो है एक टीम के बगैर मुमकिन नहीं होती। प्रोडक्शन टीम का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हर साल वो वही टीम मेंबर्स होते हैं, तो सबको सबकी केमिस्ट्री का पता है, तो इससे ट्रांसमिशन जो है ना एक मजबूत होती है। शाह साहब हैं, जनरल मैनेजर, प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने हमें मौका दिया कि हम एज अ DOP इसमें काम करें। रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन में आज उलमाए कराम ने यौम विलादत हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपकी सीरत व किरदार के मौजू पर तफसीली गुफ्तगू की। मेज़बान एहसन खान की खूबसूरत आवाज़ में अज़ान मगरिब के बाद 15वें रोज़े की ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुँची। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची।
और ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। फिलहाल आपको ले चलते हैं लोधरा, जहां वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से मुस्तहिक़ खानदानों में रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 13,000 की रकम डिजिटल वॉलेट के जरिए अदा की जा रही है। अब तक ज़िला लोधरा के 3,500 मुस्तहिक़ खानदानों में डिजिटल वॉलेट के जरिए मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। रमज़ान अल मुबारक में गरीब और मुस्तहिक़ अफराद को रिलीफ देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से दिए जाने वाले रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत लोधरा के मुस्तहिक़ खानदानों को डिजिटल वॉलेट 13,000 रुपये अदा किए जा रहे हैं। डिजिटल तरीकाकार के तहत ज़िला भर के अब तक 3,500 मुस्तहिक़ खानदान मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। PM पैकेज की तरफ से 13,000 रुपये ई वॉलेट के थ्रू जो लोगों के पास ट्रांसफ़र हुए हैं, हम उनको रिटेलर्स शॉप पर मूव कर रहे हैं, बगैर किसी कटौती के कोशिश कर रहे हैं कि उनको पूरी पेमेंट मिल जाए, और गाये बगाए उनकी निगरानी भी हो रही है, और उनको हमारी मोबिलाइजेशन की जो टीमें हैं वो डेली की बुनियाद पर मोबिलाइज कर रही हैं, और ये इस रमज़ान के बबरकत महीने में उनको पूरी ये माली इमदाद जो है ना फराहम की जा रही है। मुस्तहिक़ अफराद के बैंक अकाउंट और डिजिटल वॉलेट में 13,000 रुपये की रकम ट्रांसफ़र होने पर उन्हें मैसेज के जरिए आगाह किया जा रहा है। मुस्तहिकीन आसानी से किसी भी रिटेलर के पास जाकर रकम वसूल कर रहे हैं। मेरा घर वाला मजदूर है भाई, बता दे शहबाज शरीफ पैसे देते हैं, सब खुशी से यही गल है बेसा शॉपिंग कर सकते से गरीब बंदे से बेसा पैसे भेजने 13,000 आया करे गिद्दी वेना बाला दे काम आवे घर वाला फोती गए। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज से रकम की वसूली के लिए आवाम को कतारों लगे बगैर माली इमदाद डिजिटल वॉलेट से मुंतकिल हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से रमज़ान रिलीफ पैकेज नादार और मुस्तहिक़ घरानों को उनका हक उनके घर की दहलीज पर पहुँचाने में आवाम को सही मायनों में रिलीफ मिल रहा है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा।